आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी कि व्हाई इम्यूनिटी इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। Yes. So a need to boost up the immunity, which means that immune system, हमारी बॉडी की पाचन शक्ति ही हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आजकल अडल्टहुड है, मिडिल एज ग्रुप है और जनरली ओल्डर एज में कई बार उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके बॉडी में डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेज ऑफ पीपल to eat a well balanced, healthy, nutritious diet which will keep the body healthy, and kahin na kahin infections body mein nahi aayenge, body fit rahegi and our body will not be very prone to infection. So the activity of immunity is actually accompanied by an increased rate of metabolism, which means कि हमारी body, हमारा जो overall role है, health का role है, वो हमारा तभी body का ठीक रह पाएगा जब हम एक balanced meal खाएंगे, जिसमें हमारे सारे food groups accumulate होंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी body को healthy रखेंगे। Next is, yes, a healthy and balanced diet, a key to boosting your immunity, which means that we should have a diet accumulating all the vitamins and minerals, fruits, vegetables, everything which is required not only for small kids or children, but to everyone at different stages of life. कहीं ना कहीं older age में भी हमने ये देखा है, 50-60 years above people, they are more prone to infections, their body are more prone to infections, कहीं ना कहीं unhealthy ईटिंग पैटर्न लेना, मील स्किप करना, जंक फूड खाना, खाने को समय पे ना लेना, इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं उनके शरीर की पाचन शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को वीक कर देता है। जिसको ध्यान में रखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस डाइट का एक्यूमुलेशन डाइट पे रहे, एक फिजिकल एक्टिविटी रहे, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। So, why good nutrition is important? Yes, good nutrition is important to keep our body well hydrated. पानी का इंटेक हमारी बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जितना भी इंफेक्शन है वो हमारे नॉर्मल यूरिन के थ्रू बाहर निकले। कहीं ना कहीं डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देयर इज नो पर्टिकुलर फूड और सप्लीमेंट्स विच कैन बूस्ट योर इम्यूनिटी ओवरनाइट। तो रातों रात में कोई ऐसा फूड खा लेना, कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लेना जो हमारे शरीर को ताकत दे देगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा, ऐसी कोई भी चीज पर्टिकुलरली नहीं है जो हमारे शरीर को एकदम से ही ठीक कर दे या उसको सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स एकदम से ही दे दे। सो यस, पीपल हु ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट टेंड टू बी हेल्थियर विद स्ट्रॉन्गर immune system, and their body will not get accumulated by any of the infectious diseases like fever, cold, cough, or different type of comorbidity diseases. So eating a very healthy routine pattern and having a good routine pattern in your diet and following different shorter and frequent portion of meals is very, very important to keep body healthy. So this is a pie chart which we are showing to you that a balanced and varied diet is very, very important. Fruits का, greens का, दालों का, सब्जियों का, सलाद का, हरी सब्जियों का, सारी चीजों का, healthy fats and oils का intake, पानी का intake, एक proper balanced तरीके से हमें अपनी डाइट में रखना है, जिसमें हमें कोई भी मील स्किप नहीं करने, शॉर्टर एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिसमें हमें प्रोसेस्ड फूड आइटम्स या बेकरी प्रोडक्ट्स या अननेसेसरी फ्राइड फूड आइटम्स या एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्ट्स डाइट में नहीं लेने, सो दैट हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे और किसी भी तरीके का इंफेक्शन हमारे बॉडी में ना आए। Next, I will talk about the immunity boosting vitamins. So there are 3 to 4 vitamins which are very important for our health, which actually boost our immunity and keep our body healthy to fight against unnecessary infections. So vitamin C, vitamin A, D, E, and K. These 3 to 4 or 5 vitamins are very important. Vitamin C is the major important vitamin which should be there in our diet,
Why it should be there? Because it actually boosts the immunity. So there are many sources of vitamin C which we have to take in our diet to keep our body healthy. Such examples are lemons, tomatoes, amlas, citrus fruits, mosmi. All these things are very good to keep our body healthy and to boost the immunity. Vitamin C also helps in one thing, कहीं ना कहीं vitamin C जैसे बच्चों में या older age में या middle adulthood में हीमोग्लोबिन की बॉडी में रिक्वायरमेंट जैसे कम हो जाती है, कईयों का एच बी डाउन हो जाता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना विटामिन सी डाइट में रहेगा उतना ही आयरन एब्जॉर्प्शन डाइट की अच्छी रहेगी. सो इट इज ऑलवेज good. And during the case of anemia also, and some young girls, young women जिनमें generally menses की वजह से blood loss होता है, they should have a good healthy diet including vitamin C, because vitamin C helps in the absorption of iron. So इन सारी चीजों का intake अगर हम diet में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी body healthy रहेगी, हमारे body components ठीक रहेंगे. Other vitamin is vitamin A, D, E and K, which also does the same thing. It increases the immune system. So these are the sources which I have mentioned in my PPT: sweet potatoes, carrots, leafy vegetables, spinach, broccoli, mushrooms, eggs. And जो लोग non vegetarian है, they can also include cod liver oil, eggs वगैरह अपनी diet में, chicken है, fish है, excluding red meat and mutton. All these things will boost their immunity and provide them good vitamins and minerals. Next there are some spices and condiments which are good and it actually boosts immunity, and it has some amount of other antioxidants which are present. So again, ginger hai, garlic hai, turmeric hai, cinnamon hai, all these things actually helps in fighting of the viruses, infections जो बॉडी में आ चुके हैं. उससे लड़ने के लिए हमें जिंजर का, गार्लिक का, टर्मरिक का, सिनेमन का, इन सब चीजों का इंटेक रखना चाहिए. इन सब स्पाइसेस में कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल टर्मरिक है, उसमें कर्क्यूमिन होता है विच एक्चुअली हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लामेशन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. सो ये सारी चीजों का अगर हम अपनी डाइट में इंटेक रखेंगे तो आवर बॉडी विल नॉट बी prone to any of the diseases. Again, zinc also has a good virus fighting effects. The good sources of zinc are poultry, seeds and nuts. Again, it should be there in the body in equal requirement as we have discussed the other vitamins also, which is very very important. Iron again plays a very important role. Iron body में directly absorb नहीं होता, तो इसके लिए vitamin C की requirement रहती है. तो जितना हम vitamin C in combination of iron sources अपनी diet में रखेंगे, हमारी diet उतनी ही healthy होगी, nutritious होगी and कहीं ना कहीं हमारी body requirement पूरी होगी. So the sources of iron are what? Watermelon, raisins, soya bean, pomegranate, all these things. Yes, pineapple and all should be included in our diet. Fruits की serving हमें अच्छी रखनी चाहिए, fresh fruit juices का intake रखना चाहिए, which actually boost our immunity. Next is magnesium rich foods, which actually makes you feel calmer and कहीं ना कहीं it supports your immunity as well. So कहीं ना कहीं stress है, tension है, anxiety है COVID के time पे, so all these things will help in boosting immunity. तो जितना magnesium rich foods हम रखेंगे, for example legumes है, nuts है, seeds है, इन सब चीजों का अच्छा intake ही हमारी diet को healthy बना पाएगा. Omega-3 fatty acids and yes, probiotics. Probiotics are very very important. कई बार older age group में जो लोग 50-60 years above male लोग होते हैं, उनमें कई बार उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनका स्टमक इन्फेक्शन कई बार शुरू हो जाता है, एंड कई बार इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट प्लेन मिल्क. इन दैट केस प्रोबायोटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बूस्ट योर इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी और गट फ्लोरा. तो उसको ध्यान में रखते हुए कर्ड, छाछ, लस्सी, याकुल्ट, all these things are very good, and some fermented food products like idli, dhokla, all these things should be included in the diet, which helps in easy digestion of food.
Next is practice mindful eating, which means sometimes in times of uncertainty, like during the time of COVID, since gyms are closed, physical activity gets restricted, people are sitting at home, they are worried that one they will go out, they will catch COVID. So कई बार माइंड में आता है कि बाहर ना जाए, कोविड ना हो जाए, या फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है, लॉकडाउन का पीरियड आता है, जिम बंद हो जाते हैं, तो उस चक्कर में मूवमेंट्स बंद हो जाती है एंड बिंज ईटिंग शुरू हो जाती है, जरूरत से ज्यादा एक बारी में खाना, और अपने एंजाइटी स्ट्रेस में खाना। बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है दैट दे हैव बिकम ओवरवेट, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर नहीं जाने देते कोविड के चक्कर में कि कहीं कोविड कैच ना हो जाए। इस वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी रुक जाती है, उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है, दे फील स्ट्रेस, दे आर ऑलवेज having anxiety issues, and in this way they overeat। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करके माइंडफुल ईटिंग, मतलब कि अपने पोर्शंस का ध्यान रखना, टाइमली मील्स खाना और अपने मील्स को स्किप ना करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये चीज कहता है कि प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, ध्यान से खाएं, फिजिकल एक्टिविटी जितना घर में पॉसिबल है वो करना बंद ना करें और अपने मील्स को स्किप ना करें। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एडवाइस ड्यूरिंग क्वारंटाइन। जब क्वारंटाइन का टाइम आता है, जब न्यूट्रिशनल एक्टिविटी मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रुक जाती हैं, डाइट खराब हो जाती है, इन दैट केस द डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अवॉइड स्ट्रेस, टेंशन एंड एंजाइटी। So these are the nutritional needs during quarantine for a normal individual who doesn't have any comorbidity diseases. ये एक normal individual की requirement है that fluid intake, it should be around 2.5 to 3 liters of fluid per day in any form, including water, including fresh fruit juices, including soups, छाछ, lassi, lemon water, coconut water, all such things, and plain water as well. जितना फ्लूइड्स का इंटेक रहेगा उतनी ही बॉडी की इंटॉक्सिसिटी बाहर जाएगी, उतना ही हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा एंड आवर बॉडी विल नॉट बी प्रोन टू इन्फेक्शन। सो फ्लूइड्स को बंद ना करें, फ्लूइड्स का कंटेंट समर हो चाहे विंटर हो, इतना रखना एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोई और बीमारी नहीं है, कोई और हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए जरूरी है। कैलोरी रिक्वायरमेंट, लाइक पूरे दिन में कितनी एनर्जी उनको अपनी डाइट से लेनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड शॉर्टर एंड फ्रीक्वेंट पोर्शंस, और अपने मील्स को स्किप ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 से 2000 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से रहती है, जिसमें आपको आपके ग्रेन्स, आपका प्रॉपर बैलेंस डाइट, जिसमें आपका प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह ना रहे, आप खाना स्किप ना करो, तो इतनी आपकी एक डेली रिक्वायरमेंट है। Protein requirement is around 60 to 70 grams of protein per day. Yes, proteins are very very important to keep our body healthy, to keep our tissues healthy, muscle intake के लिए भी, तो कहीं ना कहीं एक बॉडी में एनर्जी डेवलप्ड रहे, प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट 60 to 70 ग्राम्स के हिसाब से रहता है। Next is some dietary tips. Try eating 6 times in a day. Yes, it is very important. Breakfast, lunch and dinner. इसको स्किप करना नहीं चाहिए। ओवरऑल आपका जनरल ईटिंग पैटर्न, इट शुड बी, ट्राई टू गेट इट एडजस्टेड, इट शुड बी फिक्स्ड। आपका ब्रेकफास्ट कम लंच हो रहा है, डिनर लेट नाइट चल रहा है, इट शुड नॉट बी डन, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर साइकिल बिगड़ जाती है। तो यस, 6 पैटर्न ऑफ मील्स इन अ डे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में ज्यादा गैप ना रखें। इन बिटवीन फ्रूट, सूप, सैलेड, स्प्राउट्स, छाछ, लस्सी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एक रखना जरूरी है, so that our body remains healthy and immunity भी ठीक रहे। Try to include good sources of protein. Yes, for a vegetarian person, milk and milk products, curd, छाछ, लस्सी, दाल, oats, quinoa, बेसन, इन सब चीजों में, न्यूट्रेला में प्रोटीन है, तो इन सब चीजों का एक बैलेंस अमाउंट ऑफ इनटेक डाइट में रखना चाहिए। पीनट बटर एंड ऑल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ वेजिटेरियन पर्सन, तो वो ये डाइट में रखें। अदरवाइज जो नॉन वेजिटेरियन है वो कहीं ना कहीं अपनी डाइट में चिकन है, फिश है, एग वाइट्स है, इन सब चीजों का इंटेक रखें जिससे कि उनकी बॉडी हेल्दी रहे। प्रोबायोटिक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गट फ्लोरा, तो जितना याकुल्ट है, छाछ, लस्सी, दही है, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क है, ऑल दीज थिंग्स आर गुड। जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क इंटॉलरेंस है वो सोया मिल्क या आलमंड मिल्क लेना शुरू करे, या फिर फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स वगैरह खाना शुरू करें, विच इज एक्चुअली गुड फॉर देयर हेल्थ।
Fruits and vegetables. Yes, fruits and vegetables are very important for the diet. It actually boosts the immunity and provides good amount of vitamins and minerals. So it should be included as per the daily requirement. Next, this is the preventive days diet chart which we have prepared for a person to keep their immunity well. So कहीं ना कहीं हमारे जितने भी detoxifying liquids होते हैं, जीरा पानी है, तुलसी का पानी है, लेमन वाटर है, all these things, आंवला जूस and all should be there. Honey also boost immunity. तो ऐसी चीजों का intake रखिए अपना early morning में. Breakfast should be a healthy meal and it should have a combination of carbohydrate as well as proteins, grains. हमारा जितना भी सीरियल्स रहेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक बेसन चीला, मूंग दाल चीला, इडली, उत्पम, पोहा विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, इस तरीके का एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रखे रादर देन ब्रेड, मक्खन, पराठा, चाय, इस तरीके का कॉम्बिनेशन अपनी डाइट में ना रखे. माय पर्सनल एडवाइस फॉर यंग फीमेल इज टू हैव मिल्क रेगुलरली इन द ब्रेकफास्ट विद देयर फूड बिकॉज चाय, कॉफी, कैफीन का एक्सेस इनटेक इज हार्मफुल फॉर द बॉडी. सो वो चीज को जितना अवॉइड करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा. नेक्स्ट इज अगेन शॉर्टर एंड फ्रीक्वेंट पोर्शन ऑफ मील्स. कई बार कफ हो, कोल्ड हो, तो उसमें हम जनरली कहते हैं अदरक, जिंजर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर का एक्यूरेट अमाउंट रखना और उसका पानी पीना इज गुड फॉर दी हेल्थ. तो कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है. फ्रूट सैलेड का इंटेक शॉर्टर एंड फ्रीक्वेंट पोर्शंस में. लंच और डिनर को स्किप ना करें. सैंडविचेस ब्रेड से रिप्लेस ना करें. लंच एंड dinner should have a healthy plate comprising grains, pulses, curd, fruits, vegetables, salads, everything. So all form of diet, all food groups should be there in your plate so that आप अपना mindful eating भी follow कर सके, timely अपने meals लें, meals को skip ना करें, चबा के खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं, so that mastication of food happen. जितना ज्यादा बारीकी से हम अपने खाने की हर एक बाइट को च्यू करेंगे उतना इजीली वो खाना एब्जॉर्ब होगा बॉडी में. इस चीज का ध्यान रखें. So rest, this is the pattern which you can follow, like fresh fruit juice, lemon water, all these things. Dinner and lunch and breakfast should be healthy, having major meals, and 2 to 3 shorter and minor meals are very, very important. So again, stay safe, stay healthy, wash your hands frequently, wear mask, maintain social distancing. All these are points which actually keeps you healthy and to your dear ones healthy. And make sure that diet is very, very important. तो उसको समझे, उसको फॉलो करे, उसको स्किप ना करे और अपने तरीके से उसको बहुत ज्यादा मोल्ड ना करें. कोशिश करें कि अपने टाइम स्केड्यूल, बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालें, डाइट को फॉलो करने की कोशिश करें, फिजिकल एक्टिविटी को अपने नॉर्मल डेली रूटीन में रखें जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा. So if you have any questions or any doubts, you can ask us. And we have our dietetics OPD available in the hospital. It starts from 11 a.m. in the morning, daily, Monday to Saturday, till 2 to 3 o'clock. So you can come and have a consult with a dietitian in Max Hospital, Shalimar Bagh, and we would be solve your problem and we would be happy to serve you better. Thank you. अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, you can drop it in chat box. जो भी सीनियर सिटीजन क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं. इंद्र सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं आई थिंक, तो इंद्र सिंह को म्यूट कीजिए. चैट बॉक्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन और आप चैट बॉक्स में भी अपने यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं. राजकुमार अरोरा जी का क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक ड्यूरिंग 24 आवर्स. क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक ड्यूरिंग 24 आवर्स इज, वी विल सजेस्ट कि कम से कम 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर और अराउंड 15 ग्लासेस ऑफ वाटर रखें जिनको डायबिटीज, किडनी या कोई और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है. एक नॉर्मल इंडिविजुअल को इतना रखना चाहिए. अदरवाइज इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी other comorbidity diseases like kidney problem है या sugar है, तो उस time पे we generally give them a personalized diet chart, personalized consult, तो तब water requirement different होती है. Otherwise एक normal individual can start with 10 to 12 glasses and can increase it further up to 15 or more than that. Hello.
हाँ जी, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैम, ऐसा है कि मैंने 66 साल की मेरी उम्र है, अश्विनी कपूर हूँ मैं, और मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, 2 लगवाई हुई है। लेकिन अभी मेरे को पीछे 15 तारीख को ना पॉजिटिव आ गया था, तो मेरे अच्छा। को कोई ज्यादा दिक्कत कोई नहीं आई। आई वॉज नॉर्मल, और अब मैं परफेक्ट हूँ, मुझे लैबोरेटरी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक चीज बताइए, अब मेरे इसमें कोई बॉडी में कोई लंग्स में या किसी चीज में कोई बैड इफेक्ट तो नहीं हो गया होगा? ये आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा अगर आप अपना ओवरऑल बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं या तो, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि लंग में कुछ अफेक्ट आया है नहीं आया है, जब हाँ तक जी, रिपोर्ट्स मुझे, नहीं देखेंगे वी कैन नॉट टेल यू बेटर। बट हाँ, हाँ जी, पानी का इंटेक अच्छा रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डायबिटीज किडनी लंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अभी भी ओके फील कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बस आप मैं, पानी का इंटेक रखिए। हाँ जी, सर्दियों हाँ में जी, हाँ अगर जी, आपको गुनगुना पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो आप वैसा इंटेक भी रख सकते हैं। आप चाहे तो फ्रिज का ठंडा अवॉइड करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी का इंटेक ठीक है। रखिए। उसके अलावा अगर आपको पानी को रिप्लेस करना है कुछ और लिक्विड से, तो आप उसमें अपना सूप्स है या फ्रेश फ्रूट जूसेस हैं, ऐसी चीजें लीजिए। हाँ बट जी, बहुत ज्यादा टेट्रा पैक्स की तरफ या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्वीट लिक्विड्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नेचुरल कंटेंट आपके जूसेस में, आपका घर का निकला हाँ हुआ जी, जूस हो उसमें है, दैट इज सफिशिएंट। आप अपना पानी वगैरह रखिए, सूप्स रखिए घर पे, ताजा बना के लीजिए, वो ज्यादा हाँ। बेस्ट है। अच्छा, वैसे मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हाँ जी, तो मुझे कहीं जैसे 7-8 साल तक कोई फीवर भी नहीं होता। अच्छी तो बात है आपके लिए, फिर हाँ जी, हाँ, अच्छा है, आप ये अपनी चीज डाइट एक ध्यान रखिएगा। मेरा प्लस पॉइंट है। तो हाँ बाकी जी, कोई ऐसी घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपनी मैं डाइट वहम फॉलो करो। मतलब एक वहम और वहम ना करूँ ना मैं? नहीं नहीं, आप वहम मत करिए। हाँ आपको जी, जो भी डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बोले हैं, अभी भी आपको जो प्रिकॉशंस आप ले रहे हो लेते रहिए, और अपना हाँ डाइट का जी, ध्यान रखिए। थैंक यू जी। राजकुमार नागपाल जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजकुमार नागपाल, प्लीज म्यूट टू राजकुमार नागपाल, यू मे हेलो। आस्क। मुझे अभी 3 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ मैं। और हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं 3 दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव आया हूँ। मैं तीनों डोज वैक्सीन की ले चुका हूँ। आई एम 70 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन। बट एक चीज पूछना मुझे छोटी सी, कि मैं छाछ रेगुलर पीता था सुबह शाम, हाँ जी। तो थोड़ा गला साफ रखने के लिए मैं 3 दिन से अब छाछ पीना बंद कर दिया। क्या पी सकता हूँ? आपने छाछ इसलिए पीना बंद करा है ताकि आपका गला खराब ना हो जाए? जी जी। आप छाछ पी सकते हैं, फ्रिज की ठंडी ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो तो अच्छा है आपके लिए, और दिन के टाइम पे हो तो बेस्ट है। जनरली ओल्डर एज में भी हम ये कहते हैं कि रात को, शाम को, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स आप ठंडा अवॉइड करिए। अगर छाछ फ्रेश है तो आप दिन के टाइम पे उसे पीजिए, रूम टेम्परेचर पे पीजिए, फ्रिज की ठंडी निकाल के मत पीजिए। आप चाहे तो उसमें हल्दी या जीरे का हल्का तड़का डाल के भी ले सकते हैं, उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, थैंक यू। ओके। प्लीज म्यूट टू माया रानी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे सिर में 3 दिन पहले जी एक तरफ से मतलब नसें सी फूल जाती हैं, जैसे भी माथे की फूक फूल गई, सिर की फूल गई, कभी यहाँ कपाल की फूक गई, 3-4 मतलब नसें फूल गई थी। तो वो कैसे हो गई? ठंड से हुई है या मेरे डायबिटीज भी है, शुगर भी है, तो क्या करना चाहिए? आपको बस अपनी शुगर की जांच करनी चाहिए, और इसके शुगर की अलावा ये जांच तो मैंने आपको कर ली। डॉक्टर ही। हाँ, हाँ जी। सारी टेस्टिंग करवा ली मैंने। शुगर आपकी कंट्रोल्ड आ रही है? नहीं, कंट्रोल तो नहीं है, 217 थी 3 दिन पहले। अच्छा, आप अपने खाने में मीठे का परहेज करते हैं? नहीं, मीठा नहीं खाती मैं कुछ भी। आप अपने खाने को नॉर्मल रखिए, हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके जरूर खाइए। आपकी नसें क्यों फूल रही हैं और सिर की एक साइड या दूसरी साइड में ये क्या दिक्कत आ रही है, आपको ज्यादा बेटर ये डॉक्टर ही बता पाएंगे।
बट आप अपनी डाइट में शुगर जो आपकी 217 आ रही है हाँ उसको जी। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। थोड़ा हाँ। रात को आधी से 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के सुबह खाली पेट मेथी दाना चबाना शुरू करो, जिससे कि आपकी शुगर कंट्रोल धीरे धीरे बैलेंस में आ सके। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, घबराहट या बहुत ज्यादा आप सोचेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं शुगर्स पे अफेक्ट डालता है, तो वो आप ना करें। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए कि हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एक ही बारी में बहुत ज्यादा ना लें, ये चीज ध्यान रखेंगे। और मैं अपनी कुछ किसी भी रोटी मील को खाती हूँ स्किप ना, ना कुछ करें। कभी कभी मतलब गले में यहाँ पर अटक जाती है, तो ऐसा होता है जैसे प्राण निकले, इस तरह भी मैं हो वही जाता है। कहूंगी कि अगर आपको फिजिकली कुछ दिक्कत हो रही है, सर में नसों की सूजन आ रही है या किसी भी साइड दर्द है या खाना अटकता है, हाँ तो ये जी। सारी चीजों को आपको एक बारी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो आपकी डॉक्टर को तो मदद मैं कर दिखा सके। रही हूँ जी, डॉक्टर ने हाँ तो मेरे को इंसुलिन बता रखे हैं हाँ, और तो जो गोली। डॉक्टर ने आपको प्रिकॉशन बोली है वो आप लेते रहिए। अब इस बीच आप बस अपनी डाइट का ध्यान रखिए जैसा आप रखती आ रही है। अच्छा जी, बड़ी परेशानी में हूँ, उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चक्कर आया, मतलब बैलेंस ठीक नहीं रहता उठते यही हुए। सारे सिम्टम्स आप अपने उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट करिए जो जिनको आप अभी दिखा रहे थे। हाँ जी, उनसे तो मैं कर रही हूँ, उन्होंने तो दवाई लिख रखी है मेरे को, इंसुलिन और मतलब मेटफॉर्मिन की गोली और एम्लोडिफाइन की गोली और ये एनवास 5 ये लिख रखी है मेरे को, रोज ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप एक बारी दोबारा फॉलो अप पे डॉक्टर से बात करिए कि आपके ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है, हाँ क्यों आपको जी। चक्कर आ रहे हैं। हाँ जी, कर पानी तो मैं बहुत कम पी रही हूँ, पिया ही नहीं जाता, पता नहीं क्या बात है। धीरे धीरे शुरू करिए पानी का इंटेक भी। और बाकी सारी चीजों के लिए जो भी फिजिकल प्रॉब्लम आपको लगती है, घबराहट, चक्कर लगती है, सर घूमता है, ये सारी चीजें डॉक्टर से बात करिए। करती हूँ, वो यही दवाई रिपीट कर देते हैं। अच्छा, तो आप एक बारी देख लीजिए, कंसल्ट करते रहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। हाँ जी, परेशानी में तो बहुत हूँ जी, इस टाइम मैं उठ नहीं सकती ज्यादा, उठते ही चक्कर आते हैं, पता नहीं क्या बात है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप अपनी डाइट को समय पे खाइए। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू। पीडी अग्रवाल जी। एंड राजकुमार अरोरा जी का क्वेश्चन है चैट में, combination of fruits like apple and papaya can we take together at a time? यस, एप्पल पपाया अगर आप इकट्ठे खा रहे हैं एज अ कॉम्बिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं। Please mute to PD अग्रवाल जी। हेलो, हाँ जी बताइए। पीडी अग्रवाल बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी बताइए पीडी अग्रवाल जी। नमस्कार। 3-4 दिन से गले में कुछ खराश है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को 77 ईयर्स हूँ मैं। अच्छा, 77 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि मेरे गले में खराश है थोड़ा। आपके गले में खराश है तो आप नमक के गरारे कर लीजिए, जिससे कि शायद आपकी मदद हो जाए। मैडम सुबह शाम सेंधा नमक के गरारे करता हूँ, और वो भी बेटाडाइन के भी कुल्ले कर रहा हूँ। ठीक है, उससे फिर फर्क पड़ेगा। अगर आप बीटाडिन और नमक के गरारे से काम कर रहे हैं, चल रहा है वो, तो उससे धीरे धीरे खराश खुलेगी। आप अभी फिलहाल कुछ भी फ्रिज का ठंडा ना खाइए, जिससे कि गला और खराब ना हो। ठंडा लेता ही नहीं, गर्म पानी पीता हूँ। बस ठीक है, गर्म पानी कंटिन्यू रखिए, वो आपके लिए मदद करेगा। शहद का पानी आप पी सकते हैं, गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डाल के ले लीजिए, वो आपके गले की मदद करेगा। तो ये सारी चीजें ठीक है। मैं शहद भी लेता हूँ सुबह, रात को मेथी भिगो के वो सुबह लेता हूँ। एलोवेरा भी ले रहा हूँ मैं, आंवला रस भी ले रहा हूँ, कई चीजें ले रहा हूँ, सब चीज ले रहा हूँ, पर ये गले की खराश नहीं मिट रही मेरी। बस धीरे धीरे ठीक होगी। और अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं जो आपकी ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं, एक बार उनसे भी बात कर लीजिए, अगर वो कोई मेडिसिन, कोई सिरप आपका चेंज कर सके या शुरू कर सके। उन्होंने बस पहले बीच में वो जरा कुछ खांसी तेज हो गई थी, तो जैविट वगैरह कुछ दवा दी थी, उससे ठीक हो गई। अब वो खराश है, 5-6 रोज से खराश बराबर हो रही है।
खांसी हालांकि मैं आपकी सुबह शाम ठीक हुई है तो भाप भी खांसी ले रहा अगर हूँ, आपकी स्टीम। ठीक हुई है तो खराश भी ठीक हो जाएगी। चलो और आप क्या मतलब सलाह देंगे, कौन सी मेडिसिन लूं? आपको मेडिसिन के बारे में डॉक्टर से ही बात करनी होगी। डाइट में आप अच्छा, अपना नॉर्मल खाना खाइए, फ्रिज का ठंडा कुछ मत लीजिए जो आप नहीं ले रहे हैं, और गुनगुना पानी पीते रहिए, गरारे करते रहिए, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। मैडम फ्रिज का पानी तो मैं गर्मियों में भी नहीं पीता। अच्छा ठीक है, मेडिसिन के लिए आप डॉक्टर से पूछिएगा। RO का पानी भी नहीं पीता मैं तो अपने नल का पानी उबाला, उसको उबाल के ठंडा करके और फिर तुलसी वगैरह लौंग वगैरह डाल के वो पीता हूँ मैं तो। ठीक है, तुलसी लौंग वगैरह भी आप अच्छा ले रहे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कर रहा हूँ, भाप में भी एक लौंग डाल लेता हूँ, मैं लेता हूँ जब, उससे ठीक जरा थोड़ा ठीक होगा। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके। प्लीज कैन म्यूट टू रमेश पावा जी। और चैट में क्वेश्चन है, हमारे घर में पहले मुझे फिर पत्नी को और बच्चों को कोविड पॉजिटिव हो गए थे, हम लोग अब ठीक हैं, लेकिन मेरे बेटे 22 साल को बुखार 1.5 से 99 हो गया था, लेकिन 2 दिन के बाद फिर बुखार 1.5 हो गया है। बाबा रामदेव की कोरोनरी किट से सब लोग दवाई ले रहे हैं। ठीक है, आप खाने का ध्यान रखिए, अपने बच्चे को भी थोड़ा सा हर 2-2 घंटे में डाइट दीजिए, पानी का अच्छा इंटेक रखिए, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सब कुछ उनको खिलाइए। अपने आप बॉडी से इन्फेक्शन धीरे धीरे दवाइयों के सहारे और खाने के सहारे निकलेगा और वो जल्दी रिकवर करेंगे। और कोई सीनियर सिटीजन का क्वेश्चन? नोबडी? Okay, thank you so much for Diksha ma'am for the knowledgeable No section. problem. Thank you for so much, inviting Max me Hospital. here. And it was nice sharing my views regarding immunity with you all. Thank you to Shubham also for arranging this webinar. Yeah, I think इस knowledgeable session से हमारे senior citizen के भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वेबिनार के माध्यम से हम यह सबको बताना चाहते थे कि कैसे हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you so much, Diksha ma'am. Thank you so much, Max Hospital. Thank you. Thank you.